Okay, we are going to see the next 10 questions of HCV2 chapter 29 electric field and potential. I request you to go through the questions first and then try and then see the video solutions. Okay, block of mass M having charge Q is placed on the smooth horizontal table and is connected to a wall through unstressed spring of the spring constant K as shown in the figure. Horizontal field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of resulting SHM. Okay, so we use the formula F is equal to force constant into change in the length of the spring. F is equal to Kx and X will be the amplitude of oscillation of the block, which is equal to QE by K. More the spring constant, less will be the amplitude, less the spring constant, more will be the amplitude. सॉफ्ट स्प्रिंग है उसका K कम होता है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा. हार्ड स्प्रिंग है कि स्टिफ स्प्रिंग है तो K जो है उसका मोर होगा तो X कम होगा, वाइस वर्सा. एक और पॉइंट, जस्ट सी व्हाट विल हैपन. somewhere this is the mean position, it will go further away like this distance will be same QE by X, फिर it will oscillate like this. It will go further away from the mean position when sudden field is applied, है ना, and then come back to mean position, overshoot and oscillate. Length of this will be in fact 2x, length of its path will be 2x, but amplitude will be half of that length of the path. Got it? Next one is block of mass M containing net positive charge Q. Okay. Net positive charge Q is placed on the smooth horizontal table which terminates in the vertical wall as shown. The distance of the block from the wall is D. Horizontal electric field E towards the right is switched on. Assuming elastic collision, if any, find the time period of resulting oscillatory motion. Is it simple harmonic motion? Okay. Charge is Q, positive, field is towards right, positive charge is forced in the direction of field. F is equal to QE. So it will keep on moving, come and hit and then bounce back, and against when it go retardation, and it will just slow down and again come to the halt here, again it will go and like this. ठीक है, तो यहाँ का टाइम निकाल लो और डबल कर दो उसको. S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर से A कितना होगा QE बाई M. दैट्स ऑल. S की जगह D लिखेंगे यहाँ पर. टाइम आ गया ये, तो इसका डबल कर दो वापस आने का भी, तो ये जो 2 है इसको अंदर भेज दो, 4 हो जाएगा और 2 ऑलरेडी 8 हो जाएगा. नो, इट इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जस्ट ऑसिलेटरी मोशन है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है. इसमें ऐसा नहीं, कांस्टेंट फोर्स है. ठीक है. A uniform electric field 10 SI unit exists in the vertical downward direction. Find the increase in the electric potential as one goes up through the height of 50 centimeter. Uniform field with formula V is equal to ED. It will increase against the direction of field, it increases 5 volt. Then 12 joule of work has to be done against the existing electric field to take the charge this much from A to B. How much is the potential difference VB minus VA? तो work done is equal to change of potential is equal to work done per unit charge, है ना. Potential difference is, so that's what the formula W is equal to Q into delta V. ये फाइनल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं यहाँ पर. पुट द वैल्यू 1200 वोल्ट. 55, 2 equal charges
each are held fixed at the separation of 20 centimeter. Third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. It is now moved to the point 20 centimeter from both the charges. ये भी 20, ये भी 20, और पहले इनके बीच का भी कितना था 20. इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा. That we don't need in fact. How much work is done by the electric field during the process? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव है माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. चेंज में क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल. और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज क्यू इंटू वी. यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे दोनों का, यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल निकाल लेंगे. ठीक है. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो हमने जो बताया था, यहाँ से देख लो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नेगेटिव में U2 माइनस U1, तो U1 माइनस U2 हो जाता है यहाँ पे देखो. तो 1 यहाँ पे दोनों चार्जेस का पोटेंशियल निकाल लिया V1 प्लस V2. जो चार्ज शिफ्ट करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पर दोनों का निकाल लिया. डिस्टेंसेस दी है तुम्हें, इजी है. डिस्टेंसेस दिए चार्ज की पॉइंट से, तो यहाँ पे निकाल लिया. दोनों का जब डिफरेंस रहेगा तो इतना आएगा. कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. 55 में बिल्कुल माइनस प्लस का मिस्टेक नहीं होना चाहिए. अगर वर्क डन बाई, इसी में मैं बोलूँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स कितना होगा, तो इसका निगेटिव हो जाएगा. वर्क डन बाय नेगेटिव 3.6 इंटू 10⁻³ जूल. ये किसका है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कंजर्वेटिव है. एक्सटर्नल दोनों अपोजिट होता है. यहाँ पे लिखा भी था हमने, देखो दोनों अपोजिट होते हैं. काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा उसका निगेटिव एक्सटर्नल करेगा, या जितना एक्सटर्नल करेगा उतना निगेटिव. दोनों एक प्लस एक माइनस करता है, इसलिए ज़ीरो आता है ना. नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इफ़ यू चेंज द काइनेटिक एनर्जी देन बोथ विल नॉट बी इक्वल एंड अपोजिट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 56. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन along the x-axis. Calculate the potential difference VB minus VA where points A and B are given. पहला पॉइंट ये दिया है 0 0 एंड 4 2. सपोज ये वाला और ये वाला. ठीक है. तो क्या निकालना है? VB माइनस VA. तो वेद फार्मूला VB माइनस, तो डिस्टेंस हमेशा अलॉन्ग द फील्ड लेते हैं. जैसे ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती, ये डिस्टेंस रहता है पैरेलल टू द फील्ड. नहीं तो कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा. ये ऐसे लेगा कॉस कंपोनेंट. डी पैरेलल टू द फील्ड होता है, ये डी पैरेलल टू द फील्ड. तो हमें ये डिस्टेंस पता है, दैट्स ऑल. हमें फिर एंगल का काम नहीं. ये आ जाएगा. ऐसे अगर पॉइंट बी चेंज हुआ, अभी पॉइंट समवेयर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है ना. ओके. फिर से वही डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस 2 आ रही, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है. और फिर से थर्ड पॉइंट क्या है? ओरिजिन से ये वाला लास्ट वाला पॉइंट यहाँ तक, इसका तभी डिस्टेंस और बढ़ गई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया. तो पूछा है व्हाट द रिलेशन इन द पेयर्स. देखो इसका जो सम है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू थर्ड पेयर में -80 -48 कर दो -120 है ना. इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है ऐसे. इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती. तो हमें उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैटर्स. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम और चार्ज दिस मच इज मूव्ड फ्रॉम ए टू द बी. फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वी बी पर कितनी होगी? जितना पोटेंशियल है बी पर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो.
charge multiplied by potential give you the potential energy at that point. Okay, change of potential energy is U2 minus U1. तो दोनों में Q नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बाहर आ जाएगा. 2 मतलब बी वाला पॉइंट है, 1 मतलब ये वाला पॉइंट है. ये पोटेंशियल निकाले हुए हैं, चार्ज से मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो माइनस, स्केलर क्वांटिटीज़ है, चार्ज का रिटेन करते हैं इसमें. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ फॉर ऑल द 3 पेयर्स. सेम सबके लिए ऐसे रहेगा. ठीक है, रिपीट करो. चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. चार्ज मूव्ड, जिस चार्ज को मूव करते दैट मैटर्स, है ना. 58 electric field is given in the space. If the potential at the origin is taken to be 0, find the potential at coordinates 2 2. तो फार्मूला लगाएंगे इसमें. डेल्ट एक ही फार्मूला यूज होता है. रिलेशन बिटवीन बोथ इज व्हाट? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ऑलवेज रिमेंबर दिस. चेंज ऑफ पोटेंशियल माइनस EDR डॉट में. और मोस्ट ऑफ द केसेस ये डॉट प्रोडक्ट 1 ही आता, मतलब उनका जो एंगल है 1 ही रहता है मोस्ट 99% केसेस में. तो ये सीधा एरो हटा के लिखो, ऐसा ही रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. चेंज ऑफ पोटेंशियल इज माइनस EDR, माइनस एरो हटा दो EDR. यूनिफॉर्म फील्ड है तो पूरा डिस्टेंस डायरेक्ट लिख देते. यूनिफॉर्म फील्ड में पूरा डिस्टेंस डायरेक्ट D लिख देते, वेद फार्मूला बन जाता है. तो एक ही फार्मूला है, ज़्यादा फार्मूले हैं नहीं, जस्ट उसी पे फोकस करो. ऑल द क्वेश्चन विल बी सॉल्व. देखो यहाँ पे मैंने लिखा डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू, जस्ट लेट मी पुट इट प्रॉपर्ली फर्स्ट. तो डेल्टा V इज इक्वल टू EDR. तो डेल्टा V क्या है? V2 माइनस V1 है. E दिया है तुम्हें, ये E इज गिवन, आई मीन E इज गिवन दिस. और क्या है? और कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. तो जो DR होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ओरिजिन है, इनिशियल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चाहिए हमें. तो ये डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं. 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, 30 इंटू 2 60 हो गया. तो ये ब्रैकेट में है इनफैक्ट, है ना. तो V2 माइनस V1 है ना. तो V2 माइनस V1, V2 तो हमें जिस पॉइंट पे चाहिए, V1 ओरिजिन का दिया, 0 दिया है, वहाँ पे 0 लेना है. जनरली इनफाइनाइट पे 0 होता है, बट यहाँ पे बोला है ओरिजिन पे 0, तो ओरिजिन पे 0 ले लेंगे. तो ये आंसर आएगा. राइट. अगेन एक ही फार्मूला होता है, ये दोनों के बीच के रिलेशन का डिफ्रेंशिएशन में चेंज कर लेते हैं. ये इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएट करना है तो ये नीचे आ जाता है. ठीक है, तो एक ही फार्मूला है, जस्ट रिमेंबर. माइनस साइन का मतलब ये होता है पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ठीक है, तो ये इनफैक्ट यूनिफॉर्म फील्ड है, देखो, है ना. इसमें कुछ टाइम डिपेंडेंट एंड पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, डॉट प्रोडक्ट से काम चल गया. ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज 59. इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दिया है एक्स डायरेक्शन में. ए की वैल्यू, ये एक कांस्टेंट है, इट इज़ गिवन. टेक द पोटेंशियल एट इतना टू बी 0. अभी ओरिजिन पे नहीं ले रहे, यहाँ पे ले रहे. कन्वेंशन क्या है? इन्फिनिटी पर होता है. फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन. ओके, फिर से अभी वेरिएबल कंडीशन है, देखो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इंटीग्रेशन लगेगा. इसी में इंटीग्रेशन लगा दिया. R1 जो है ओरिजिन पर है, तो ये 0 है ना. तो ओरिजिन, ओके जस्ट मिनट, है ना. क्वेश्चन नंबर 59 में टेक द पोटेंशियल एट इतना टू बी 0. इतने पर 0 लेना है ना. ओके, यहाँ पे चेंजेस आएंगे थोड़े, एक मिनट. टेक द पोटेंशियल एट 1020 टू बी 0. फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन. ओके, R1 पर, R1 यहाँ पर है. टेक द पोटेंशियल इतना
तो यहाँ पर देखो इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, ये तुम्हारा ओनली एक्स कोऑर्डिनेट ही बचता है एक्चुअल में देखा जाए तो 10, बिकॉज एक्स है तो मैं केवल 10 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 0 है और ये जो है R2, ठीक है, जस्ट वेट, है ना, टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर, ये 10 मीटर टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, तो यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये V है, ये सही है इधर, और यहाँ पर देखो ये माइनस छूटा था, अभी आ जाएगा ये यहाँ पर देखो, इसलिए होल्ड ऑन, तो यहाँ पे चेंज करेंगे और ये माइनस देखो छूटा हो, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इसमें जो dr लेते हैं, है ना, dr जनरली क्या होता है, dx इंटू आई कैप प्लस dy इंटू चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, है ना, तो यहाँ पे केवल dx ही रहने वाला है, y तो है नहीं, तो dx, तो इसका इंटीग्रेशन जो है ओके, लिमिट फिर से चेंज हो गया, अभी आएगा आंसर वही, इनफैक्ट यहाँ से लिमिट जो है 10 है, ओके, जब हम लिमिट चेंज कर देते तो माइनस हट जाता है, चलो अभी आगे चेंज नहीं करें, लिमिट जब हमने इंटरचेंज कर दी तो माइनस हट जाता है, ओके, देन फर्दर कटिंग नहीं करते, लिमिट हमने इंटरचेंज कर दी तो दिस माइनस विल गो, विच वन, ये माइनस यहाँ पे जो आया है ना, लिमिट इंटरचेंज करने से माइनस चला जाएगा, नाउ इट्स ओके, तो बी केयरफुल, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा फॉलो करो, राइट। तो अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, जैसी कंडीशन दी, ये वेरिएबल कंडीशन थी, तो हमने इसी में ये जो फार्मूला होता है वेल नोन फार्मूला, इसको याद कर लो, है ना, तो ये जो फार्मूला है इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया, फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हमने, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो किए कि भाई इस पर 10 मीटर पर 0 लेना है, तो 10 एक्स ले रहे, देखो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, नीचे यहाँ पे दोनों तुम लिख सकते हो, दोनों कोऑर्डिनेट्स 10 एंड 20, बाद में एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा बस, क्योंकि यहाँ पे dr है, जनरल टर्म्स है, इसलिए ऐसे लिखा, आगे चल के वो, तो ये यहाँ पर 0 लेना है बोला है ना, यहाँ पे देखो, ओके, और निकालना कहाँ, ओरिजिन पर, तो 0, ये जो तुम्हारा हो गया ओरिजिन, वहाँ पे v निकालना है, उसके बाद बस ये v2 माइनस v1 यहाँ पे, ठीक है, और ये माइनस साइन है इधर, और ये लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, y कोऑर्डिनेट छोड़ दिया बिकॉज x में है ये पूरा, तो लाइक दिस नाउ 500 वोल्ट, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल, नथिंग एल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट इन द स्पेस इज गिवन बाय दिस रिलेशन, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, ओके, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे देखो ए, ये देखो ये पोजीशंस हैं, ये नीचे आ जाएंगी, वो प्रोडक्ट है, तो इसका डायमेंशन एल स्क्वायर आएगा, दो पोजीशन एक साथ है एल स्क्वायर, और वी का डायमेंशन, तो ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एल स्क्वायर, तो वी इज क्या, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू वर्क डन, क्यू का क्या होता है 80, करंट का ए ले रहे हैं, एससीबी बुक में, एनसीईआरटी बुक में ए है, देयरफॉर मैंने ए लिखा, इस बुक में आई है, दोनों चलेंगे डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन यू सी, ठीक है, तो ये पुट कर दिया तो ये आ गया डायमेंशंस, ठीक है। नाउ राइट द डायमेंशनल फॉर्म, ओके, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इफ, ओके, जनरल एक्सप्रेशन है, तो ये रहता है, ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है, इसमें जब मोर देन वन डायरेक्शन में दी है तो हमें ये फार्मूला लिखना पड़ता है, एक डायरेक्शन में थी तो डायरेक्ट काम हो जाता है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से, मोर देन वन उसमें तो ये ऐसा जनरल फार्मूला होता है, ये एक्स की फील्ड हो गई, ये वाई की डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में, ठीक है, तो वेयर ई एक्स, फार्मूला वही बेसिक पे आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई एक्स विल बी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, इसमें क्या होता है एक्स को वेरिएबल लिया जाता है, वाई जेड कांस्टेंट हो जाते हैं, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे देखो एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे देखो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, वाई बच जाएगा, इसमें दोनों कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसमें जेड बचेगा, तो माइनस, ये देखो, ये ऐसे ही
वाई की रिस्पेक्ट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को वेरिएबल ये जगह बाकी कांस्टेंट होंगे, इसमें ये आता है जिसके साथ वाई होगा वो टर्म बचेंगे, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। ऐसे जेड इसमें जिसके साथ जेड होगा वो टर्म बचेंगे, बाकी ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये सबका आ गया, तो सबकी वैल्यू पुट कर दी माइनस के साथ, माइनस साइन मीन्स पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ए 10 एंड एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 1 दिया है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ए भी दिया है 10, तो ये वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट ऑफ -20 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ -20 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ माइनस, तो 20 बाहर आ गया, √3 अंदर, तो इसको सिंप्लीफाई किया, 35 वोल्ट पर मीटर इज द आंसर। Okay, next lecture we will continue with this from 61 onwards. Thank you very much.